Hello students, now I will explain you the science of class 6. Today I will explain you the exercise of lesson 10. First है A, tick the correct answer MCQ type question है. First question है the SI unit of measuring the length is option B meter, correct है. Second question, measuring with the help of thread or stick gives a rough measurement. Third है the object which changes their position with time with respect to the surrounding is said to be option B motion. Fourth question है the motion in which the objects move in a linear or in same direction curved or straight is said to be option B linear motion. Fifth question है the distance between the two cities is a option C large distance. Sixth question है a bicycle is moving on a straight path. Choose the correct statement. इसमें ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी करेक्ट है. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट है stationary objects do not change their position with time. Second है the motion of a moving car on a curved road is said to be curvy linear motion. Third है the shape and the size of the object changes during the vibratory motion. Fourth है the periodic motion takes a fixed time to complete itself and repeated again. Fifth question, every time we move from one place to another includes covering certain distance. स्टूडेंट्स हम लोग पेज नंबर 143 पर हैं. सिक्स क्वेश्चन है द मोशंस which repeat themselves at a regular interval of time are called periodic motion. Now see, write true or false against the following sentences. First है all the living things except the plants can move themselves from one place to another. True है. Some of the things around us move with time, whereas there are some of the objects which are in continuous state of motion. True है. Third है when an object moves from one place to another, it is said to be in state of rest. False है. Fourth question है the length of the place you covered to reach the friend's house or the shop is called the measurement. False है. अगला क्वेश्चन है the length. Fifth question, we can measure the length of a scale even if its zero marking is not visible. True है. Sixth है a scale is used to measure long distance. False है. We can use hand span as a unit to measure something. True है. Now match the following. दो इसमें कॉलम है. फर्स्ट है व्हीकल मूविंग ऑन द रोड, इसमें बी ट्रांसलेटरी मोशन. सेकेंड है ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल, डी सर्कुलर मोशन. थर्ड है आवर हार्ट बीट्स, ए नॉन पीरियोडिक मोशन. फोर्थ डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज, एफ किलोमीटर्स. मेजरमेंट विद एन इंच टेप, ऑप्शन सी एक्चुअल मेजरमेंट. सिक्स्थ है मेजरमेंट ऑफ ए पीस ऑफ क्लॉथ, ई मीटर और सेंटीमीटर. Now very short answer type questions. First है give two examples of each of the following motion. Linear motion, इसका example bus, bike running on the road. Circular motion, needle of watch and wheel of bike. Oscillatory motion, stretched rubber band and pendulum of watch. Periodic motion, motion of earth and motion of moon. नेम द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, सेकंड क्वेश्चन है ये, मीटर इसका आंसर है. थर्ड क्वेश्चन है नेम टू कॉमन डिवाइसेस यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ, तो स्केल है और मेजरिंग टेप है. फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज एसआई यूनिट इन फ्रेंच, पेज नंबर 137 पर है. सिस्टम इंटरनेशनल, डी यूनिट्स. नाउ एफ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. फर्स्ट है डिफाइन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, गिव एग्जांपल, तो पेज नंबर 133 पर मस्ट टू नो में इसका आंसर दिया गया है. सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन स्टैंडर्ड यूनिट, पेज नंबर 137 पर मस्ट टू नो थर्ड में इसका आंसर है. थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन मेजरमेंट, इसका आंसर पेज नंबर 137 पर मस्ट टू नो सेकेंड में इसका आंसर लिखा गया है. स्टूडेंट्स नाउ वी आर ऑन द पेज नंबर 144. फोर्थ क्वेश्चन है एकदम ऊपर, व्हाट डू यू मीन बाय द एसआई यूनिट, गिव एग्जांपल ऑफ सम यूनिट्स. पेज नंबर 137 पर एसआई यूनिट का डेफिनेशन दिया गया है और वहाँ एग्जांपल भी है.
फिफ्थ क्वेश्चन है, could you be in a state of motion and at the same time at rest with respect to the different objects around you? Give an example to show this. Yes, when we are traveling by a bus or by a train, then the objects inside our compartment, it is we are in stationary condition with respect to the objects present inside our compartment, but the objects that is outside the train, as plants and any other things, in respect to that we are in condition of motion. जब हम बस में चल रहे होते हैं या ट्रेन में चल रहे होते हैं, तो ट्रेन के अंदर के डिब्बे के कंपैरिजन में हम लोग रेस्ट में हैं, क्योंकि जो हमारी सीट है, हमारा जो प्लेस है, वह सीट के कंपैरिजन में नहीं बदल रहा है, या विंडो और डोर के कंपैरिजन में नहीं बदल रहा है। लेकिन जो चीज़ें ट्रेन के डिब्बे के बाहर हैं, जैसे कि कोई पेड़, उसके कंपैरिजन में हमारी पोजीशन चेंज हो रही है, तो हम मोशन में हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग रिवॉल्विंग एंड रोटेटरी मोशन। पेज नंबर 135 पर मस्ट टू नो में है। रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर मोशन, स्टूडेंट्स इसका आंसर पेज नंबर 134 पर है। अगला है रेस्ट एंड मोशन, इसका आंसर पेज नंबर 133 पर मस्ट टू नो में दिया गया है। अगला है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसका भी पेज नंबर 137 पर मस्ट टू नो फर्स्ट में दिया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन है, कैन ए बॉडी अंडरगो मोर देन वन मोशन एट द सेम टाइम? यस, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स पेज नंबर 136 पर हेडिंग है डिफरेंट मोशन एट द सेम टाइम, आप इसको पढ़ करके वहां से लिख लीजिएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज द मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ? पेज नंबर 137 पर लिखा गया है इसका आंसर। तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों ही होते हैं। आप पेज नंबर 137 से हेडिंग है मेजरमेंट, वहां से पढ़ करके इसको लिख लीजिएगा ऑन वर्ड्स में। नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट है, व्हाट आर द यूनिट्स यूज्ड टू मेजर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंथ? हाउ आर दे रिलेटेड विथ ईच अदर? स्टूडेंट्स पेज नंबर 138 पर एकदम ऊपर की लाइनों में टॉप ऑफ द पेज इस क्वेश्चन का आंसर है कि कैसे मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर से रिलेटेड है, तो आप वहां से पढ़ करके लिख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक मोशन एंड नॉन पीरियोडिक मोशन? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। स्टूडेंट्स पेज नंबर 136 पर पीरियोडिक मोशन एंड नॉन पीरियोडिक मोशन हेडिंग है, आप वहां से पढ़ करके इसे लिखिए। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड टू नो अबाउट डिस्टेंस? स्टूडेंट्स पेज नंबर 139 पर बॉटम में एकदम हेडिंग है, व्हाई डू वी नीड टू नो अबाउट डिस्टेंस, यहां से पढ़ करके आप लिख लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेथड यूज टू मेजर बाय स्केल। तो स्केल से मेजर करने का मेथड पेज नंबर 138 पर दिया गया है, वहां से पढ़ करके आप लिख लीजिएगा। और स्टूडेंट्स आप अपना एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में, और इसमें अपनी फेयर कॉपी में आप लोग इसे खूब अच्छी तरह से लिख करके अपने ओन वर्ड्स में याद कर लीजिएगा। थैंक यू।